اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا؟ کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ کی کتاب میں چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. صرف قرآن میں لکھا ہے، کبھی کتاب میں نہیں ہے. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے ہے شادی کرو. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں لکھے ہے؟ بھگوت گیتا میں کہاں لکھے ہے؟ کہتا ہے اب بائبل میں دکھاؤ. میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے دکھلاؤ کہ کہاں پر لکھا ہے ایک بیوی کے بارے میں بائبل کے اندر. باقی کتابوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا، لیکن ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم بائبل مقدس میں جہاں جہاں یہ لکھا ہے اگر ہم اس کو کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک یہ ویڈیو پہنچی ہے جو آپ نے شروع میں دیکھی ہے کہ مجھے دکھلاؤ کہ کہاں پر ایک بیوی کے بارے میں لکھا ہے، تو آپ ان کو یہ ریفرنسز دے سکتے ہیں. لارڈ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلام کی ہو. خداوند یسوع مسیح کا نام آپ کو مبارک ہو. میں خدا کا خادم پاسٹر آصف آج اس خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر ایک مذہبی اسکالر جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کی پروگرامز ہو رہے ہیں، اور پروگرامز کے اندر سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ لیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں یہ وہ ویڈیو دیکھی، اس کے کچھ کلپس دیکھے، تو اس کے اندر ایک خاص بات انہوں نے کہی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرو. اور بقول ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے یہ کہا کہ یہ چرچ کہتا ہے، چرچ یہ کہتا ہے، پاسٹر یہ کہتا ہے. اگر ایسا کہیں لکھا ہے تو بائبل میں دکھاؤ، بائبل میں دکھاؤ لکھا ہوا. تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بائبل میں لکھے ہوئے کے بارے میں ہے کہ خدا کے کلام کے اندر یا کتاب مقدس کے اندر، بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ اس سوال کے تعلق سے کیا لکھا ہے، یعنی ایک شخص ایک ہی بیوی رکھے، یا شادی کو لے کر یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ زیادہ شادیاں کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر کہاں کہاں لکھا ہے آج کی ویڈیو کے اندر یہ ہم سب وہ آیات، وہ ورسز جو ہیں ان کو نوٹ کریں گے. تو آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں اور بائبل مقدس کو کھول کر اس میں سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر اس طرح کے ریفرنس ہمیں ملتے ہیں کہ بائبل مقدس کی اس بات کی سپورٹ کرتی ہے کہ خداوند نے بائبل مقدس کے اندر ایک شوہر کے لیے ایک ہی بیوی کو الاؤ کیا ہے. پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو جب آدم اور حوا کو خدا نے پیدا کیا تو سب سے پہلے میاں بیوی جو ہیں وہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتے ہیں، یعنی جینیسس کے اندر ملتے ہیں. پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اگر میں 21 آیت سے پڑھوں تو لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. غور کیجیے گا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اور آگے لکھا ہے 24 آیت کے اندر، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. جیسے ہی کتاب مقدس شروع ہوتی ہے انسان بنایا جاتا ہے، آدم بنایا جاتا ہے، اور آدم میں سے ایک پسلی نکال کر خدا نے اس کو عورت کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا، اور آدم اس کو اپنی بیوی کہتا ہے اور کلام کہتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی. تو سب سے پہلا ریفرنس یہاں پر جو ملتا ہے ایک عورت کے تعلق سے وہ پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے. اگر ہم آگے جائیں، پڑھتے جائیں اس کو، تو استثنا کی کتاب میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر خدا جو ہے وہ کلام کر رہا ہے اور بہت سارے جو چیزیں ہیں، قوانین ہیں، وہ خدا نے کلام مقدس کے اندر سے بتائے. اور استثنا کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں
17 बाब और उसकी 17 आयत, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि एक बीवी हो। तो इस आयत को गौर से सुनिएगा। कलाम कहता है कि जब खुदा ने अहकामात दिए, तो मैं 16वीं आयत से आपके सामने पढ़ता हूं। लिखा इतना जरूर है, यानी जो कुछ नीचे कहा जा रहा है वो जरूर है कि वो अपने लिए बहुत घोड़े ना बनाए, ना लोगों को मिस्र में भेजे ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावंद ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। और आगे लिखा है और वो बहुत सी बीवियां ना रखे। बहुत सी बीवियां यानी एक ही बीवी उसके पास हो, बहुत सी बीवियां उसके पास ना हो, या वो ना रखे, ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए, और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे। इसका मतलब ये है, सिस्ना की किताब 17 बाब 17 आयत शायद डॉक्टर साहब ने पढ़ी नहीं है, या उनकी नजरों से ये नहीं गुजरी, या उन्होंने कुछ रेफरेंसेस ऐसे हैं जो उन्होंने याद करके रखे हैं, जिनका उनको जवाबात देने होते हैं या मुनाजरों के दौरान उनको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर वो इस्तिस्ना की किताब 17 बाब 17 आयत पढ़ें, तो वहां पर खुदा का ये खास हुक्म था कि जब कोई बादशाह बने तो वो ज्यादा बीवियां ना रखे। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है, उन्होंने कहा जी फलां की कितनी बीवियां थी, फलां नबी कितनी बीवियां थी। इस पर बाद में हम कभी बात करेंगे, और हो सकता है अगली वीडियो के अंदर मैं इस बात को भी एक्सप्लेन करूं। लेकिन आज हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि एक ही बीवी का खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है। ये दूसरा रेफरेंस है जो मैंने पढ़कर आपको बताया है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो इमसाल की किताब के अंदर भी बहुत सारी बातें लिखी हैं बीवी के तल्लक से। अगर हम 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ें, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इमसाल की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रहे। अपनी जवानी की बीवी के साथ, बीवियों के साथ नहीं बल्कि बीवी के साथ। इसका मतलब है ये वाहिद सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ, सिंगुलर है। बीवी के साथ शाद रहा। इसका मतलब शाद रहने का तल्लक बीवियों की ज्यादा तादाद से नहीं है, बल्कि शाद मानी का तल्लक जो है किसी और चीज के साथ है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि एक ही बीवी की बात हो रही है, एक ही बीवी की बात हो रही है। कलाम बार बार जहां जहां कहीं इस तरह की बात आई है कलाम मुकद्दस के अंदर, किसी ने अगर किसी को नसीहत की है, किसी ने कोई कानून जब किसी को बताया गया, तो उसके दौरान एक बीवी का जिक्र हुआ है। और यहां पर भी लिखा है तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। थोड़ा आगे चलें तो इमसाल ही की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसका मैं आपको बताता हूं। अगर 18वां बाब और उसकी 22 आयत आप पढ़ते हैं, 18 बाब की 22 आयत, तो वहां पर लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। थैंक यू लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में से जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। जिसको बीवी मिली, ना कि बीवियां मिली। यहां पर भी सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। इंसाल की किताब पुराने अहदनामे के अंदर ये बात लिखी है। और इसी तरह जब हम पुराने अहदनामे की आखिरी किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसके तल्लक से लिखा हुआ है। यानी पुराने अहदनामे की आखिरी किताब कौन सी है? मिलाकी की किताब, जहां पर पुराना अहदनामा जो है वो खत्म हो जाता है और इसके बाद मत्ती की इंजील जो है वो शुरू हो जाती है। कलाम कहता है, मिलाकी की किताब 2 बाब उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, लिखा है फिर तुम्हारे ईमाल के सबब से खुदावंद के मज़हबा पर आहो नाला और आंसू की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदियों को देखेगा, ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। 14वीं आयत, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान, बीवियों के दरमियान नहीं बल्कि बीवी के दरमियान क्या है? गवाह है। खुदावंद मियाँ बीवी के दरमियान में कोई इंसान गवाह होता है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा गवाह उस वक्त जो है वो खुदावंद खुद होता है। कलाम फरमाता है कि तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, तूने उससे बेवफाई की है, अगरचा वो तेरी रफीक और मनकूहा
बीवी है। और 15वीं आयत गौर से सुनिए, कलाम कहता है क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, ज्यादा को नहीं, उसने एक ही को पैदा किया। पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा है, मिलाकी की किताब कंफर्म कर रही है, पैदाइश की किताब के अंदर पैदा किया गया। जब कलाम मुकद्दस शुरू होता है, बाइबल मुकद्दस शुरू होती है, तो पैदा होने की बात होती है, बनाए जाने की बात होती है, और मिलाकी की किताब खत्म होती है तो खत्म होने से पहले ही, इससे पहले कि मिलाकी की किताब खत्म हो, उससे पहले ही मियाँ बीवी का जिक्र दोबारा से आ गया है। और कलाम कहता है कि क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और अरवा मौजूद थी। फिर क्यों एक ही को पैदा किया? डॉक्टर साहब, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। ये वजह है कि खुदा ने एक ही औरत को एक शौहर के लिए पैदा किया। उन्होंने बहुत सारी लॉजिक्स दी पॉपुलेशन के हिसाब से, वहां की पॉपुलेशन इतनी है, मर्द इतने हैं, ये अच्छी बात है, ये सारी चीज अपनी जगह पर, लेकिन हम इसको कलाम मुकद्दस के अंदर देख रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर उन्होंने दावा किया कि दिखलाओ कि कहां पर लिखा है कि एक बीवी। तो यहाँ पर मैंने ये पुराने अहदनामे के कुछ रेफरेंसेस जो है मुख्तसर वक्त के अंदर आपके सामने रखे हैं। अब चलते हैं नए अहदनामे की तरफ और वहां पर जाकर भी देखते हैं कि कहीं पर एक बीवी का जिक्र हुआ है या नहीं। जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो मत्ती के अंदर भी ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने मरकस के रेफरेंस को जो है वो मैंने चूज किया। अगर मरकस 10 बाब और 5वीं आयत से डॉक्टर साहब पढ़ेंगे या आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, लेकिन मगर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए हुक्म लिखा था, लेकिन खलकत के शुरू से उसने उन्हें मर्द और औरत बनाया। इसलिए मर्द अपने माँ बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो उसकी बीवी, दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और 10वीं आयत में लिखा है, घर में शागिर्दों ने उससे इसकी बाबत फिर पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो उस पहली के बरखिलाफ ज़िना करता है। यानी अगर वो दूसरी शादी करता है तो पहली के बरखिलाफ उसको जो है वो ज़िना गिना जाएगा। बाइबल मुकद्दस एक ही बीवी के बारे में कहती है कि कोई भी एक शख्स जो है वो एक बीवी का शौहर हो। हम आगे बढ़ते हैं अगले रेफरेंस की तरफ। अगला रेफरेंस है क्रंथियों का खत 7वां बाब और उसकी जब हम पढ़ते हैं पहली आयत से तो लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। अपनी बीवी, ना कि अपनी बीवियां। यहाँ पर भी सीधा इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, यानी एक बीवी की बात हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे दिखलाओ कि कहां पर लिखा है एक बीवी के बारे में बाइबल के अंदर। बाकी किताबों का हम कुछ नहीं कह सकते कि कहां लिखा है कहां नहीं लिखा, लेकिन हमें ये हक बनता है कि हम बाइबल मुकद्दस में जहां जहां ये लिखा है अगर हम उसको किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंची है जो आपने शुरू में देखी है कि मुझे दिखलाओ कि कहां पर एक बीवी के बारे में लिखा है, तो आप उनको ये रेफरेंसेस, हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। हो सकता है अगर आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, तो वो ये रेफरेंसेस निकाल कर पढ़ लें। कलाम कहता है 7वें बाब की कि हर मर्द, 7वें बाब में, पहले क्रंथी 7वें बाब में, हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। आगे बढ़ते हैं पहला थिमोथियस जब हम पढ़ते हैं 3रा बाब, पहले थिमोथियस का 3रा बाब और उसकी 2री आयत को जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला थिमोथियस का खत उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बात शुरू करने से पहले ही उसने कह दिया कि ये बात सच है। 2री आयत के अंदर लिखा है, बस निगहबान को बेइल्जाम और एक बीवी का शौहर, यहां तो खास साफ साफ लिखा है सर, एक बीवी का शौहर। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ निगहबान के लिए है, ये तो सिर्फ पास्टर के लिए, ये तो सिर्फ बिशप के लिए, ये तो सिर्फ उसके लिए है जो खिदमत करता है। नहीं भाई, जो खिदमत करता है वो पहला नमूना है। अगर वो एक बीवी का शौहर होना चाहिए तो इसका मतलब है क्रिसिया में भी जितने मर्द हैं उनको भी एक ही बीवी का शौहर होना चाहिए। जैसा खादम जो है वो करके दिखाएगा, लोग वैसे उसके पीछे फॉलो करेंगे उस कलाम को। और कलाम कहता है निगहबान
जो ऊंचे दर्जे पर है, जो एक मेंटोर है, जो एक टीचर है, जो निगहबान है, जो सामने खड़ा है, जो सिखाता है, जो बतलाने वाला है, जो सिखाने वाला है, जिससे लोग सीखते हैं, जिस पर लोग एतबार करते हैं कि ये पढ़कर सही समझकर हमें सिखा रहा है, उसके बारे में लिखा है कि वो एक बीवी का शौहर हो। एक बीवी का शौहर, सर यहाँ पर भी एक बीवी का जिक्र आया। आपने कहा बाइबल में कहीं नहीं लिखा, मैंने उसको पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो शायद आप ये मिस कर गए हैं। पहला थिमोथेयुस 3 बाब की पहली और दूसरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आपको पास्टर गजाला शफीक जो हमारी बहन हैं, उन्होंने आपको बाइबल गिफ्ट की है। हो सकता है आपने जो पहले बाइबल पढ़ी उसके अंदर ये रेफरेंसेस ना हो, लेकिन आपको जो बाइबल गिफ्ट की गई है कुछ दिन पहले, एक वफद जो है, क्रिश्चियन वफद आपको मिला है, पास्टर गजाला शफीक और पादरी साहब और उनके साथ मौजूद जो पास्टर साहबान से वो आपसे मिले हैं और उन्होंने आपको एक गिफ्ट किया है, एक बाइबल। आप उसमें से इन रेफरेंसेस को देखें, हो सकता है उसके अंदर ये रेफरेंस मौजूद हो। आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं शायद उसके अंदर ना हो, या शायद आपने उनको साइड पर कर दिया हो, या शायद आपने स्किप कर दिया हो। तो कलाम मुकद्दस के अंदर आपने कहा था दिखलाओ, तो ये इतने सारे रेफरेंस मैंने आपको पुराने अहदनामे में से भी और नए अहदनामे में से भी दिखलाए हैं। अगर आप इफ्सियों के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि इफ्सियों 5 बाब और उसकी 23 आयत जब आप पढ़ते हैं, हाँ इसको भी पढ़ लेते हैं। 5 बाब और उसकी 23 आयत के अंदर लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानत मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। और ऊपर अगर हम जाते हैं 23वीं आयत के अंदर तो वहां पर लिखा है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसा कि मसीह कलीसिया का सर है। यानी बाइबल मुकद्दस के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर एक ही होता है, एक बदन का एक बदन एक ही सर होता है और एक सर के नीचे जो है वो एक ही बदन होता है। एक सर के नीचे ज्यादा बदन नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक अगर मियाँ बीवी को इस तरह से डिफाइन किया जाए कि शौहर सर है और बीवी जो है वो बदन है उसका, तो याद रखें कि फिर एक बदन के ऊपर एक ही सर हो सकता है, एक सर के नीचे ज्यादा बदन नहीं हो सकते, मतलब एक शौहर की ज्यादा बीवियां नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस इसको ऑन नहीं करती। हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल शादियां की हैं, इस पर बाद में कभी बात करेंगे कि क्यों की हैं, किस तरह की हैं, या उनको करने के बाद उनके साथ उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो के तवज्जुह से वो मैसेज, वो पैगाम जो मसीहियों की तरफ से जाना चाहिए वो गया होगा। आप इस चैनल को द वर्ड ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलाम मुकद्दस को सुन सकें और पढ़ सकें और सीख सकें। खुदावंद आपके साथ हो, यीशु के नाम से आमीन।